بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج انتہائی افسوسناک خبر آئی گزشتہ روز دوپہر کے ٹائم جب زور کی نماز ادا کی جا رہی تھی تو پشاور کے اندر بہت دل دشمن نے ہماری جو فورسز تھی، جو ہمارے رکھوالے تھے، جو ماؤں کے لال تھے، جنہوں نے اپنی مطلب کہ اس سردی کے اندر اس مطلب کہ ملک کی آزادی اور اس ملک کی یعنی کہ امن و سکون کی ضامن ہماری جو فورسز ہیں ان کے اوپر انہوں نے بزدلانہ ایک دشمن نے کارروائی کی مسجد کے اندر، جو ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ تھا۔ تو دشمن نے اس اپنی چال کے اندر کامیاب ہوا ایک وقتی طور پہ تو، لیکن ہمارے جو وہ جوان شہید ہوئے وہ انشاءاللہ، چونکہ وہ ایک تو قوم کی خاطر، قوم کی حفاظت کے لیے مطلب کہ ڈیوٹی پہ تعینات تھے، وہ زور کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے تو اس دوران دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں انفارچونیٹلی تقریباً 50 کے قریب جو شہداء ہیں وہ مطلب کہ وہ ابھی تک ان کی تقریباً وہ نام وہ کنفرمیشن ہو چکی ہے، اور تقریباً 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، چونکہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ مسجد کا ایک جو حصہ ہے وہ بھی شہید ہو گیا، جس کے فوراً بعد سیکیورٹی ایجنسیز اور جو باقی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ہاسپیٹلز کے اندر، اور وہاں سے یہ اعلانات سامنے آئے کہ وہاں مطلب کہ خون کے عطیات کی او نیگیٹو کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے جب سی سی پی او اور گورنر صاحب نے پریس ٹاک کی تو اس پریس ٹاک کے اندر یہ بتایا سی سی پی او صاحب نے کہ تقریباً 300 سے 400 کے راؤنڈ اباؤٹ مسجد کے اندر نمازی موجود تھے، چونکہ وہ ایک قسم کا یہ پولیس لائن تھی اور اس کے ارد گرد یہ ایک قسم کا پشاور کا پوش علاقہ تھا، ریڈ زون آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی مطلب کہ اہم عمارتیں بھی تھیں، عام مطلب کہ ہاؤسز بھی تھے، عام مطلب تھا کہ آئی جی کا آفس بھی اپوزٹ سائڈ پہ تھا، لیکن اس کے باوجود دشمن یعنی کہ آپنی چال چلنے میں وقتی طور پہ تو ناکام ہوا، لیکن ہماری جو فورسز ہیں، چاہے وہ پاک افواج ہے، چاہے وہ پولیس ہے، رینجر ہے، ایف سی کے جوان ہیں، وہ انشاءاللہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنے جو ماؤں کے لال ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے، اس دھرتی ماں کے اندر امن لانے کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ہماری پاک افواج دن رات محنت کر رہی ہے اس ملک کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی چونکہ کچھ اندرونی بھی شر پسند لوگ ہیں نا، انفارچونیٹلی اندر سے بھی کچھ لوگ ہیں جو ہمیں مطلب کمزور کرنا جانتے ہیں، لیکن ان کے کلا کمے کرنے کے لیے بھی ہماری پاک افواج اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ دن رات محنت کر رہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس دھرتی ماں کو، اس پاکستان کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اپنی جو محنت اور تگ و دو سے اس ملک کے اندر امن پیدا کر کے اور ایک امن کا جھنڈا انشاءاللہ دنیا کے اندر یہ لہرائیں گے، اور انشاءاللہ جو دشمن کے عزائم ہیں ان کو انشاءاللہ خاک میں یوں ہی ملاتے رہیں گے ہماری جو ایجنسیز ہیں، اور انشاءاللہ دن رات وہ محنت کر کے وہ اپنی یعنی کہ اس سردی کے اندر، آپ یقین جانیں سردی کے اندر ایک عام آدمی کا باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو پاک افواج اور ہمارے جو باقی سیکیورٹی کی جو ایجنسیز ہیں وہ انشاءاللہ سیاچین جیسے مطلب سر ترین علاقے میں اپنی جان کا مطلب کہ ایک یعنی کہ مشکل کے اندر ڈال کے پھر بھی وہ مطلب کہ ایک سینہ سپر ہو کے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ایک مطلب پوری توانائی کے ساتھ وہاں جذبے کے ساتھ انشاءاللہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس ٹائپ کے جو یہ چند شر پسند عناصر رہ گئے انشاءاللہ ان کا بھی بہت جلد کلا کما ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو ہمارے یہ زخمی ہیں اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستملہ نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ اب مطلب رات کے ٹائم پہ وزیر اعظم صاحب بھی اور وزیر اعلیٰ جو آرمی چیف صاحب ہیں سپر سلار، وہ بھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور کے اندر پہنچے، اور انہوں نے بھی جو مریض ہیں ان کی عیادت کی، اور جو شہداء ہیں ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت بھی کیا، اور اسی طرح ہماری جو باقی پولیٹیکلی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی اس چیز کی شدید مذمت کی، اور عالمی سطح سے بھی اس کے اوپر یعنی کہ مذمتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ یہ جتنے بھی زخمی ہیں اللہ ان کو جلد صحت یابی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور وہ یقیناً جنتی ہیں، کیونکہ ایک تو وہ ملک کی حفاظت کے لیے تعینات تھے جن کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ جو سرحدوں کے محافظ ہیں وہ مطلب کہ ان کے لیے مطلب دورے
इनामात हैं, और फिर वो मुल्क की हिफाजत और इस्लामी मुल्क की सरहदों की और इस्लामी मुल्क की हिफाजत के ऊपर मामूर थे। फिर मस्जिद के अंदर अल्लाह को राज़ी करने के लिए मतलब कि वो अल्लाह के हजूर सजदे में थे। तो इंशाल्लाह वो यकीनन 100% हमें यकीन है कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम पे होंगे, और वो यकीनन 100% शहीद हैं, उनका इसमें कोई किसी किस्म का कोई दो राय है ही नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इस मुल्क को इस्लामी मुआशी सुपर पावर बनाए और मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम पैदा करे। और इसके लिए मेरी तमाम लीडरशिप, जो सियासी खास तौर पे लीडरशिप है किसी भी पार्टी से, इस वक्त उसको बलाए ताक रखते हुए मुल्क की इस वक्त जो बका है उसकी सलामती के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है, ताकि जो ये दुश्मन है उसको इस तरह की जो कार्रवाई हैं उस तरह की मतलब के मौका ही ना मिले, और उसके खिलाफ एक प्रॉपर सीना सपर हो के उसके खिलाफ मतलब के ऐलान बगावत किया जाए, और इस तरह का जो दुश्मन है उसका कला कमा किया जाए। इसको ये वैसे तो इसकी जो कब यानी कि अटैक का हमला है वो टीटीपी ने कबूल कर लिया है, कि उन्होंने मतलब कि फिलफौर उन्होंने कबूल कर लिया कि ये हमने किया, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह की जो ये शर पसंद लोग हैं इंशाल्लाह हमारी पाक अफवाज उनका कला कमा करे और उनको निशाने इबरत बनाएगी। तो इसके साथ आप थोड़ा सा आपको पॉलिटिकली बताता चलूं कि फवाद चौधरी की जो कल जमान उनकी अदालत के अंदर पेशी थी, चूँकि 2 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड पूरा हो चुका था, चूँकि आपको मालूम है उनको तकरीबन संडे वाले दिन उनको लाहौर पॉलीग्राफी के लिए भी ले जाया गया, जिसके ऊपर फिर मुख्तलिफ किस्म की खबरें आती रहीं कि उनको वहाँ मतलब के पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद उनको जो उनके लाहौर के डिफेंस के अंदर उनका घर है तो वहाँ पे भी पुलिस उनको लेके गई कुछ मतलब के लैपटॉप्स और उनकी फाइलों के हवाले से। तो इस किस्म की फिर खबरें आई। आज फिर उनको यानी गुज़िश्ता रोज़ उनको अदालत के अंदर पेश किया गया तकरीबन 3 बजे के राउंड अबाउट, जिसके अंदर फिर फवाद चौधरी ने ये कहा कि मैं मतलब पिछले कई दिनों से सोया नहीं हूँ, चूँकि ये मुझे मुसलसल कभी इस्लामाबाद लेके आते हैं कभी लाहौर लेके जा रहे हैं, मुझे हमेशा ट्रैवल में इन्होंने रखा हुआ है। और उसके साथ ही फिर उनकी जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी मजीद, उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया और उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे अदालत अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और उनकी अब जमानत के हवाले से पीटीआई के जो वकला हैं बाबर अवान चूँकि उनके मेन लीडिंग वकील हैं, तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जो जमानत है उसके हवाले से भी रजू करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने बल्कि गुज़िश्ता दिनों यानी संडे वाले दिन जो उनकी एक मीटिंग हुई थी, आला सतही इजलास हुआ था पीटीआई का लाहौर के अंदर जमान पार्क के अंदर, तो उसके अंदर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने जब प्रेस टॉक की तो उस प्रेस टॉक के अंदर ये कहा कि जो इस 33 हल्के हैं कौमी असम्बली के, उसके हवाले से जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर इमरान खान खुद मैदान में उतर हैं और वो 33 के 33 हल्कों में इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे और वो पीडीएम को शिकस्त देंगे। इसमें तो वैसे फिर कोई राय नहीं होगा, जब इमरान खान खुद यानी कि मैदान के अंदर उतरेंगे तो फिर इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत और दूसरी जानिब पीटीआई ने यह भी उस प्रेस टॉक के अंदर जो उनकी इजलास हुआ उसके अंदर यह भी फैसला हुआ था कि जो गवर्नर हैं जो केपीके और पंजाब के, चूँकि आइन की रूह से अगले तकरीबन जैसे ही असम्बली तहलील होती है तो जो गवर्नर होता है वो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर उसने अनाउंस करना उस आइन की रूह से लाजमी होता है इलेक्शन की डेट। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस बंदे ने, दोनों गवर्नर ने वो डेट नहीं दी, तो लिहाजा अब हम अदालत के अंदर रजू करते हैं। तो फिर पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जब समाअत की तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से बातचीत की, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो पहले ही मरासला गवर्नर के पास पहुंच चुका है कि इस हवाले से डेट अनाउंस की जाए, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नर ने अभी तक उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, जिसके ऊपर फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं एहसन फवाद गालबन उनका नाम है, तो उन्होंने फिर अब गवर्नर से जवाब तलब कर लिया और इसके ऊपर अब मजीद समाअत जो है अब वो आगे जब होगी तो उसके ऊपर फिर फैसला आएगा कि ये इलेक्शन कब होते हैं। चूँकि आइन की रूह से असम्बली के जो इलेक्शन है इस तरह की जो तहलील होती है उसके ऊपर गवर्नर का ये आइनी कानूनी फ़र्ज़ बनता है कि वो 60 से 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना ये फ़र्ज़ है। बट
गुज़िश्ता रोज़ ही वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने एक यानी कि बयान दिया है। अब वो बयान उनका किस हद तक ठीक है, इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं वो इसके ऊपर बेहतर राय दे सकते हैं कि आइन के अंदर, चूँकि उन्होंने कहा कि ये गुंजाइश है कि जो इलेक्शन हैं यानी कि ये जो मेन यानी दोनों असम्बलियों की तहलील के ऊपर, ये 90 दिन से आगे भी हम लेके जा सकते हैं। आइन के अंदर कुछ इसकी उन्होंने कोई गुंजाइश भी शायद उन्होंने देखी होगी, फिर जब भी बात कर रहे हैं, या ऐसे ही उन्होंने सियासी बयान दे दिया। तो इसके ऊपर अभी पूरा एक यानी कि पीटीआई की जाने से या किसी और की जाने से अभी को प्रॉपर रद्द अमल नहीं आया। तो ये चंद एक अहम पेश रफ्ते थी जो कि गुज़िश्ता मतलब के दिनों 2 रोज़ के अंदर ये हुई। तो अब ये पूरा एक सिनेरियो बन चुका है। मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए सबसे जो इस वक्त आम और अहम तरीन बात यह है कि आप तमाम पॉलिटिकली लीडरशिप को मिल बैठ के मुल्क की बका के लिए मतलब कि एक इकट्ठ बना के इसको इस्लामी मुआशी और दुश्मन का जो इस तरह के अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाने का वक्त आ गया, और अपनी जो सियासी अना है तमाम पार्टियों को साइड पे रख के इकट्ठा होना चाहिए। और इसकी मिसाल हमें मतलब गुज़िश्ता रोज़ मैंने देखी एक न्यूज़ की सूरत में, और मैं वो दंग रह गया। अमेरिका है ना, वो भले हमारा आज यानी पीटीआई वालों के लिए हो सकता है जो बाइडन पसंद ना हो, किसी के लिए अच्छा हो या जो भी है, मतलब कि अब अमेरिका हमें पसंद ना हो, लेकिन उसकी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर मुआशी सिचुएशन ख़राब हुई, तो उसके ऊपर जो बाइडन और जो वहाँ की अपोजिशन लीडर है वो मिल बैठ के एक जगह पे बैठने के लिए तैयार हो गई है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ क्या मुल्क की यानी कि वो प्रायोरिटी नहीं है हमारे लीडरशिप के लिए? जितने भी सियासी हैं, क्या वो मुल्क की खातिर एक मतलब पेज पे नहीं आ सकते, एक मतलब डायलॉग के लिए टेबल पे नहीं आ सकते? अनफॉर्चुनेटली यानी कि वो मुल्क जो यानी कि आप उसको जो मर्जी कहो, वहां भी आता कि जो बाइडन के खिलाफ अंदरूनी तौर पे भी लोग उसके मतलब पार्टी के लोग भी उनसे अच्छे ज्यादा खुश नहीं है, अपोजिशन तो खुश ही नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद मुल्क की बात आई तो वो सब इकट्ठे हो गए। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ भी इस वक्त तो मैं कहता हूँ डेड लाइन बन चुकी है कि इस किस्म की मतलब हमारे पास तो कोई मुआशी और इस किस्म का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं बचा। जो इस वक्त महंगाई का एक सैलाब बर्पा हो चुका, और अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ लोगों को खाने के लिए मिल रहा है। अगर यही हालात ये चंद वीक और निकाल जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मतलब कि इसके बाद अवाम के पास क्या होगा? और जब फिर अवाम को पास खाने के लिए नहीं कुछ होगा तो वो क्या होगा? मुल्क के अंदर एक जो इज़्तिराब की कैफियत है उसको मेरे ख्याल में ख़त्म करने के लिए हमारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एक मेज़ पे आना चाहिए, और अपने जो मतलब ज़ाती उनको अनाए हैं वो साइड पे रख के इस वक्त मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। और हमारी जो सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, चाहे वो पाक अफवाज है या बाकी एफसी रेंजर पुलिस जो भी मतलब के हैं, उनके साथ मतलब शाना बशाना, क्योंकि जब अंदरूनी तौर पे मुल्क मुस्तहकम होगा तो इस किस्म का, ताकि फिर हमारी पाक अफवाज और जो बाकी यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं वो इस किस्म के जो बुज़दिल दुश्मन हैं उनका कलंक कमे के लिए उनको आसानी होगी। तो प्लीज़ आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और एक दफ़ा जो हमारे शहादा हैं पुलिस के लवाहिकीन शहादा, उनके लिए सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ के उनके लिए मतलब दुआए मगफरत करें, और मुल्की सलामती और अमन के लिए पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआएं की अपील है मेरी आपसे। तो प्लीज़ चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।